الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، جس کو عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ نام ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا. حقیقت میں وداع نام کا کوئی جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قول یا فعل سے نہیں ملتا. رمضان کے تمام جمعہ برابر ہیں. رمضان المبارک کے کسی جمعہ کو کسی جمعہ پر فوقیت حاصل نہیں ہے. رمضان کا ہر دن بے مثال برکات کا حامل ہے. بعض لوگوں کے ہاں اس جمعہ کا الگ سے خطبہ اور الوداعی الفاظ عربی میں کچھ بنا کے پیش کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسلام ہمارا خوبصورت دین ہی اسی لیے ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے سے مکمل، اکمل اور کامل ہے. اس میں اب نہ کسی کو کچھ ڈالنے کی اجازت ہے اور نہ اس میں کچھ نکالنے کی اجازت ہے. بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ضرور ہے. رمضان المبارک اب اختتام پذیر ہونے والا ہے. جن خوش نصیبوں نے اس مبارک مہینے کی گھڑیوں کو اپنے حق میں قیمتی بنا لیا، وہ لوگ قابل تعریف ہیں، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں. اور جن سے خدا نخواستہ سستی ہو گئی تو ابھی بھی کچھ نہیں گیا. رمضان المبارک جاتے جاتے بھی بہت کچھ دے کر جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی آخری گھڑیوں کو اپنے حق میں قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اس کا جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کا نام ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ. جہنم سے میرے بھائیوں اگر آزادی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت عذابوں سے نجات نصیب فرما دیں. اور عذابوں سے نجات ملے گی تو بالیقین پھر جنت ہی ہے، جنت کے سوا اور اللہ نے بھیجنا کہاں ہے. تو اس لیے آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت کے عذابوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اور ایمان والوں کے متعلق اللہ کے خاص الخاص بندوں کی نشانیاں اس مقام پر سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر جو بیان ہو رہی ہیں
ان میں ایک بہترین زبردست اور مشہور نشانی یہ بھی ہے اللہ کے خاص الخاص بندوں کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے وہ خاص الخاص بندے ہیں کہ جن کی راتیں اپنے رب کے لیے یا تو کبھی حالت سجدہ میں گزرتی ہیں یا حالت قیام میں گزرتی ہیں، یعنی ان کی مختلف ہیئتیں ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی راتیں مصلی پر گزار دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، یا اللہ جاگتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف میں، امید میں، ہر حال میں اپنے رب سے مانگتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رب کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایسا بن کر آئے وہ میرا خاص الخاص بندہ ہے، وہ ہیں عباد الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ گناہوں سے معصوم ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر چھوٹے بڑے گناہ سے کیا ہیں بھائی؟ معصوم ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی عصمت و حفاظت میں لیا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ مصلی پہ گزارا کرتے تھے، اور کیفیات یہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حتیٰ تتفتر قدما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے حتیٰ تشققت وتدمدمت، کبھی کبھی تو پاؤں میں قیام کرنے کی وجہ سے پھٹن پیدا ہو جاتی تھی، اتنا لمبا قیام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اتنا مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ نے تو آپ سے اگلے پچھلے سب گناہ اٹھا لیے ہیں، کوئی گناہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، تو اتنی مشقت بھلا کیوں ہے؟ تو اس معصوم ہستی کا جواب سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جس اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے گناہوں سے معصوم بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شفیع بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی نہ گزاروں؟ اللہ اکبر، شکر گزاری کیسی دکھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کبھی کبھار اتنا لمبا سجدہ فرمایا کرتے، اتنا لمبا سجدہ، یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے، تہجد کی نمازوں میں اتنا لمبا سجدہ فرماتی کہ مجھے ہول اٹھنے لگ جاتے، مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی، کہیں میرے آقا علیہ السلام کا حالت سجدہ میں انتقال تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا میں آپ علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتی اور آپ علیہ السلام ذرا آواز بلند کر کے کہتے سبحان ربی الاعلی، عائشہ میرے اور محبوب کے بیچ میں مت آ، عائشہ جس سے باتیں ہو رہی ہیں اس کی اور میرے بیچ میں مت آ، اس سے لو لگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس معصوم ہستی کے انداز عبادت۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانیاں بتا دی ہیں۔ آپ نے فرمایا تہجد پڑھو، یہ اگلے لوگ یعنی جو اللہ والے گزر گئے یہ ان کا طریقہ رہا، یعنی نبیوں کا طریقہ رہا، تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کی رحمت بندے کی جانب مکمل طور پہ متوجہ ہوتی ہے، اور یہ خلوت کا وقت ہوتا ہے، اور فرمایا تہجد پڑھا کرو، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دیں گے، اللہ عبادت کی اور اتباع و اطاعت کی محبت ڈال دیں گے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی رات کے آخری پہر میں اگر نہ اٹھ سکے تو عشاء کی نماز کے ساتھ متصل بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو بھی فرمایا بات للہ ساجدا و قائما، اللہ کے کاغذوں میں یہ بھی تہجد گزار لکھ دیا جاتا ہے۔
कितनी आसानी फरमा दी मेरे भाइयों, कितना आसानी फरमा दी। फरमाया ए मेरे उम्मतियों, तैयारी करो, रहमान के ख़ास बंदो, रहमान से मुलाकात होने वाली है, तैयारी करो। अल्लाह अकबर। और रहमान के ख़ास बंदों की ये तो हालत बयान हुई। फरमाया कभी सजदों में, कभी क़याम में, लेकिन उनका वजीफ़ा क्या होता है? फरमाया वजीफ़ा ये होता है, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। बावजूद इसके कि तहज्जुद गुजार हैं, बावजूद इसके कि शब जिंदादार हैं, बावजूद इसके कि कुरान पढ़ पढ़ के रातें उनकी गुजर रही हैं, लेकिन फरमाया वबिल अस्हार हुम यस्तगफिरून, जब सहरी का वक्त करीब लगता है अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं और माफ़ी मांग रहे होते हैं, मौला हक अदा न कर सके, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। फरमाया ये है रहमान के ख़ास बंदों का हाल। और फिर दुआ होती है, या रब्बना रब्बना, ए हमारे रब, इस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, हमसे जहन्नम का अजाब हटा लीजिए। या अल्लाह जहन्नम का अजाब उठाने की हम में ताकत नहीं है, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, ये तो कमर तोड़ देने वाला अजाब है। मौला हम कमज़ोर इंसान हैं, गोश्त पोस्त के लोथड़े हैं, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। कुर्बान जाऊं, ये अल्लाह के ख़ास बंदों का अंदाज़ मोहब्बत है। करते भी हैं, डरते भी हैं, करते भी हैं और कर करके फिर डरते भी हैं। यानी जो अल्लाह ने करने का कह दिया वो करते 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 थक जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से डरते हैं कि पता नहीं क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आखिरी अशरा जो है ये जहन्नम से पनाह मांगने का है। ख़ास तौर पे फरमाया जहन्नम से पनाह मांगो, पनाह मांगो, पनाह मांगो। मैं अल्लाह ताला ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर रखे हैं, कुछ इशारा करो, बचने की तगो दो करो। मैं अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे वैसे ही इन दिनों में बंद कर रखे हैं और तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। फरमाया कुछ दौड़ लगाओ, मेहनत करो, इंशाअल्लाह कामयाब होने में देर नहीं लगेगी। कामयाबी बहुत आसान है मेरे भाइयों इन दिनों, इन रातों के अंदर। तो आखिरी अशरे के अंदर जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगी गई है। जहन्नम क्या है मेरे भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। ये आग दहक रही होती है भट्टी, जिस वक्त कोई कारखाना देखें, कोई फैक्ट्री देखें, जब एक बड़ी भट्टी दहक रही होती है तो उसकी तरफ देखा नहीं जाता। मेरे भाई ये तो दुनिया की आग है और फरमाया जहन्नम की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। कुरान मजीद ने उस आग का नाम रखा नारुल कुबरा, बड़ी आग। इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर। फरमाया वो इतनी गुस्से में होगी जहन्नम दिन क़यामत के कि वो बड़े बड़े चिंगारे फेंक रही होगी। तरमी फेंकेगी, बिशररिन चिंगारे, कल कसर के एक एक चिंगारा बड़े बड़े महल के बराबर होगा। जहन्नम की चिंगारियां हैं मेरे भाई, ये तेजी से फेंकेगी गुस्से से और चिल्लाएगी, चीखेगी, और 70,000 फरिश्तों ने उसकी एक एक लगाम को थाम रखा होगा कि वो धाड़ती हुई हशर के मैदान की तरफ लपकेगी, गुनाहगारों की तरफ लपकेगी। एक एक लगाम को 70,000 लगामें जहन्नम की, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्तों ने थाम रखा होगा, लेकिन वो उनको भी घसीटती हुई गुनाहगारों की तरफ लपकेगी। नारुल कुबरा, क्या ये पनाह मांगने की चीज नहीं है भाई? क्या इससे बचाव नहीं करना रमजान की मुबारक घड़ियों में? इसके बाद फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, ये कोई आम आग नहीं है, अल्लाह की जलाई हुई आग है, अल्लाह ने इसे जलाया है। नारन तलव्वा, फरमाया ऐसे जला के भून डालेगी जैसे दुनिया में बोटी को भून डालते हो। फरमाया ऐसे ही बदन को भून के अंगारा और कोयला कर देगी। नारुन हामिया, जला के रख देने वाली। ला तुबकी वला तज़र, फरमाया जब इसके अंदर गुनाहगार जाएगा इतना अजाब पहुंचाएगी। ला तुबकी, न तो उसका कुछ छोड़ेगी, ला तज़र, ला तुबकी वला तज़र, और ना ही उसको मौत के मुंह में डालेगी, न ही उसका कुछ छोड़ेगी। फरमाया ला यमूतु फीहा वला यहया, न मौत आएगी न जिंदगी जीने का मजा होगा, क्योंकि मौत तो मौत के मुंह में चली जा चुकी होगी, मौत तो वहां आ नहीं सकती। और यह है कि अजाब में भी किल्लत और कमी नहीं आएगी।
جائے گی۔ اس کے بعد یہ عذاب تو میرے بھائی جہنم کے ذاتی ہیں، پھر ان عذابوں میں کچھ عذاب ہیں۔ دیکھیے ہمیں کیوں پناہ مانگنی ہے جہنم سے، ہم تصور میں رکھیں، اس مصیبت کو تصور میں رکھیں، کیا برداشت کرنے کا جگر ہے کسی کے پاس؟ تو اللہ رب العزت نے جو وہاں عذاب پیدا کیے، عذابوں میں عذاب ہیں۔ جہنم کی آگ میں پلنے والا ایک ایک سانپ جس کی گردن بختی اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، بختی اونٹ کی طرح گردن لہرا کے حملہ آور ہوگا، اور ایک ایک بچھو خچر خچر کے قد برابر ہوگا۔ فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ حملہ آور ہوگا، سانپ اور بچھو ایک ڈنگ اگر مار گیا خدا نہ خواستہ، 40 سال تک اس کی بدن سے سوزش نہیں جائے گی۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال مہلت ہے، ادھر گرا ادھر اٹھا پھر پینترا بدل کے وار کیا۔ یہ عذابوں میں الگ سے عذاب ہیں میرے بھائیوں۔ رہ گئی خوراک کیا ہوگی؟ فرمایا الا من ذریع، کانٹے دار جھاڑی اس کو کھلائی جائے گی جس کے کانٹے لوہے کے ہوں گے۔ زقوم ہے، فرمایا اسے بھوک لگے گی اور وہ کانٹے اس کے منہ میں فرشتے ٹھونسیں گے، کھائے گا نہیں، اس کے منہ میں ٹھونسیں گے، اور بھوک ہے کیا کرے؟ اور جس وقت حلق میں جا کے اٹک جائیں گے تو عام ذا غصۃ، حلق میں اٹک جانے والا کھانا ہوگا۔ یہ پانی مانگے گا الا من غسلین، تو جہنمیوں کے زخموں کا پیپ، خون اور دھومن جمع کر کے ایک گرم دہکتے پیالے میں ڈال کر اس کو دیا جائے گا، اور جب یہ منہ سے لگائے گا تو چہرے کی کھال ادھڑ کے اس میں گر جائے گی، اور پھر ایک گھونٹ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ اندر جانے کی دیر ہے، زبان ٹکڑے ٹکڑے، انتڑیاں کٹ کے پاخانے کے راستے نکل جائے۔ قطع امعاءہم، میرے بھائیو یہ وہ جہنم ہے جس سے بچنے کا میرے رب نے آخری اشرے میں حکم دیا، بچو بچو، بچاؤ کر لو، بچاؤ کا سامان کر لو۔ میرے بھائی نادان انسان وہ ہے جس سے کہا جائے کہ بھائی بربادی ہے اس راستے میں، نہ جا نہ جا، لٹ جائے گا، مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، لیکن وہ کہے میں نے تو جانا ہی اسی راستے سے ہے، تو پھر تباہی اس کا مقدر ہے۔ میرے رب نے بتا دیا یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے، یہ عذاب ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، اب بچاؤ کا سامان کرو۔ فرمایا جو عباد الرحمن ہیں، جو میں اللہ کے خاص بندے ہیں، فرمایا وہ لمحہ لمحہ قدم بقدم اس چیز سے بچاؤ کا سامان کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ہے مقام من حدید، کہ جہنم کے اندر ہیں یہ آگ، ایسے جہنم تندور کی مانند ہے، اور میرے بھائی اس کی گہرائی کوئی عام نہیں ہے۔ فرمایا اگر ایک بھاری بھر چٹان، ایک بھاری چٹان پتھر کی اگر جہنم کی آگ میں ڈال دی جائے، جہنم میں ڈالی جائے، تو اس کو جہنم کی تہہ تک پہنچنے میں 70 سال لگیں گے، اتنا گہرائی ہے اس کی، اور جہنمی اس کی تہہ میں گرے گا۔ جہنم کی آگ کا شعلہ اتنا غصے سے اس کو اٹھائے گا نیچے سے کہ یہ جہنم کے شعلے کے ساتھ اڑتا اڑتا اوپر کنارے سے بھی باہر آنے لگے گا۔ فرشتے لوہے کا گرز لے کے کھڑے ہوں گے، اوپر سے گرز مار کے اس کو دوبارہ اعیدوا فیہا، لوٹ جاؤ، پیچھے لوٹا کے دوبارہ اس میں گرا دیں گے۔ میرے بھائی اس سے بھی ایک اور خطرناک تکلیف دہ چیز ہوگی۔ جہنمی دیکھیں نا، جیل میں جب قیدی قید ہوتے ہیں وہاں ان کو ستایا جاتا ہے تو پھر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو کھا جانے کو دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جہنمی بھی اسی کیفیت سے گزریں گے۔ جہنمیوں کی آپس میں شدید لڑائی ہوگی، جہنم میں شدید لڑائی، ادھر عذاب ہی عذاب، ادھر لڑائی، ایک دوسرے سے تنگ ہوں گے، دلوں میں نفرت اور غصہ ہوگا۔ بالآخر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، یا اللہ ایک بار مہلت دے دے باہر نکلنے کی، پھر ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہ قرآن کا لفظ ہے بھائی، ذرا سمجھیے گا۔ اخسؤوا، جب کتا کسی انسان کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی جان نہ چھوڑے، کتے کو جن الفاظ سے دھتکارا جاتا ہے، یعنی اس کو دھر دھر کیا جاتا ہے، پیچھے ہو جا، اس کو غصے سے کتے کو جس طریقے سے دھتکارا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے میرا رب ان کو اس طرح دھتکار کے کہے گا جاؤ جہنم کے اندر، لا تکلمون، اور میں اللہ سے بات بھی نہ کرو۔
मैं अल्लाह से बात भी, कोई रहम की अपील कबूल नहीं होगी मेरे भाई उस मकाम पर। लेकिन फरमाया इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुकामा, बहुत बुरी जगह है रहने की, बहुत बुरी जगह है बाएतबार ठिकाने के। लेकिन फरमाया जहन्नम से आज़ादी के लिए मैं रब ने आखिरी अशरे के अंदर ऐलान आम कर रखा है। फरमाया जो आएगा कहेगा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मेरे मौला मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। हदीस शरीफ में आया जो फजर की नमाज के बाद बगैर किसी से बात किए 7 मरतबा पढ़ता है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, और जो शाम की नमाज मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बगैर किसी से दुनियावी बात किए पढ़ता है 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। फरमाया सुबह पढ़ी, दिन में मौत वाक़ई हो गई, जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल गया। शाम में पढ़ी, रात में मौत आ गई, जहन्नम की आग से आज़ादी का। सो गए हो भाई, बहुत कम वक्त रह गया है हमारे पास। रमज़ान गया, अगले साल को भूल जाएं, पता नहीं कौन जिंदा हो, भूल जाएं। ये कीमती घड़ियां हैं मेरे भाई, इनको अपने हक में कीमती बना ले, वरना रमजान तो गुजरे जा रहा है, वक्त तो किसी का इंतजार नहीं कर रहा। इधर अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने इन घड़ियों को कीमती बना लिया, मेरे रब ने फरमाया उलाइका युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू, इन्होंने जो मुसीबतों पे तकालीफ पे सब्र किया दुनिया में, मैं अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने पे जो सब्र किया दुनिया में, जैसे रोजा है, क्या ये रोजा सब्र नहीं मांगता? रोज़ा सब्र मांगता है। तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, तबीयतें सब्र का तकाजा करती हैं, हालात आ जाते हैं, हालात सब्र का तकाजा करते हैं। फरमाया मैं अल्लाह के दीन के लिए आने वाली मुश्किलात पर जिन्होंने सब्र किया उलाइका युजज़ौनल गुरफा, इनको मैं अल्लाह जन्नत के महल्लात नसीब करूँगा, जन्नत के महल्लात नसीब करूंगा। कैसा महल? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हा सुबहान अल्लाह, एक हदीस याद आ गई। ये तो हदीस में आता है ना कि एक ईंट सोने की और एक चांदी की, अंदर जाएंगे तो बाहर का मंजर दिखेगा इतना शफाफ, सोना और चांदी शीशे की मानिद शफाफ, क्या लाजवाब हुस्न होगा उस इमारत का। जन्नती अंदर हैं तो बाहर का मंजर दिख रहा है, बाहर हैं तो अंदर का मंजर दिख रहा है उनको, लेकिन कोई गैर तो उनकी जागीर में आ ही नहीं सकता, इसलिए वहां बेपर्दगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने हर जन्नती को अलग अलग जागीर अता करनी है। जन्नती अचानक ऊपर देखेंगे तो उनको मशरिक के उफुक पे या मगरिब के उफुक पे कुछ सितारे चमकते हुए नजर आएंगे, तो वो कहेंगे या अल्लाह ये सितारे नहीं हैं मगर चमक सितारों जैसी है, ये क्या चीज है? तो कहा जाएगा कि ये तुमसे ऊपर के दर्जे वाले जन्नतियों के महल्लात हैं। कहेंगे मन हाउला, ये कौन है, हमसे इतना ऊपर चले गए, ऊपर की बिल्डिंग में रहने वाले, अल्लाह का मजीद इनको कुर्ब हासिल है, इन्होंने क्या नेकी की थी? अल्लाह फरमाएंगे हाउलाई मुतहाब्बून फिल्लाह, ये वो खुश नसीब हैं जो दुनिया में अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। किसके लिए? अल्लाह के लिए। मतलब क्या है कि ये अल्लाह वाला है लिहाजा मुझे महबूब है, ये दीनदार है, ये नमाजी है लिहाजा मुझे इससे प्यार है। अल्लाह के लिए जिसने किसी से मोहब्बत की, मेरे भाई दिन क़यामत की अल्लाह उसको इसी मोहब्बत के बदले में जन्नत के बाला खाने नसीब फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। अमल थोड़ा लेकिन जज़ा बहुत बड़ी। इसके बाद फरमाया कि जन्नत की जो घास है वो ज़ाफ़रान की है और उसके जो संगरेजे हैं वो मोतियों के हैं। जन्नत के संगरेजे कंकरियां नहीं हैं पत्थर की, मोतियों के हैं, हीरे लाल जवाहिर बिखरे हुए हैं। और वहां के बागात जो हैं दरख्तों के तने अल्लाह ने सोने के बनाए हैं। और जन्नत में सवारी मिलेगी, अल्लाह ने घोड़े बनाए हैं जन्नत में, पर हैं, उड़ा करेंगे, उड़ने वाले घोड़े हैं जो जन्नत में उड़ा करेंगे, उन पे जन्नती सवारी किया करेंगे। पलंग हैं सोने के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां अनवा व अक़साम की नेमतें बनाई हैं, खाने को पीने को, माकुलात व मशरूबात अनवा व अक़साम के हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, जहन्नम से बचने वाले आमाल किए, तगोदौ कर ली है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया कि जब ये जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जन्नत के दरवाजे पर ये पहुंचेंगे जन्नती, तो फरिश्ते दरबान खड़े होंगे, यानी इस्तिकबालिया के तौर पर अल्लाह के नूरानी फरिश्ते खड़े हैं, फरिश्तों की एक जमात खड़ी हुई है। फरमाया युलक़ौन फ़ीहा तहियतन व सलामा, वहां सलाम के तोहफे चलेंगे, सलाम के तोहफे। फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम
तिब तुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पर सलाम हो। तिब तुम का माना हमेशा खुश रहो। फरिश्ते की दुआ क्या होगी भाई? तुम्हें कभी गम ना आए। अरे तुम सबको कभी गम ना आए। अल्लाह हम सबको हर गम से बचाए। आहिस्ता आमीन कहें। फैसले होने वाले हैं, आखिरी अशरा है और आखिर है, इंशाअल्लाह फैसले होने वाले हैं। जितना सिपरेट होगा इंशाअल्लाह उतना जल्दी फैसला होगा। कहो अल्लाह हम सबको जन्नत का वारिस बनाए, अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचाए, अल्लाह हम सबको दुखों से बचाए, अल्लाह हमें रमज़ान के जाते जाते अपना महबूब बना ले। मेरे भाइयों, ये कीमती घड़ियां हैं, इनको अपने हक में कीमती बनाने वाला बड़ा दानाव अक्लमंद है। फरमाया फिर फरिश्ते भी सलाम करेंगे, मोमिनीन एक दूसरे को सलाम करेंगे। बात यहां नहीं, बात आगे बढ़ गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इनको नजर करम और नजर रहमत से देखेंगे। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, रब की जानिब से सलाम आएंगे, रब की जानिब से सलाम। सलाम का माना सलामती होता है कि अब तुम्हें कोई दुख ना हो। जब अल्लाह कहे तुम्हें कोई दुख ना हो, जब अल्लाह दुआ दे दे तुम्हें कोई गम ना आए, तो मेरे भाई कोई गम का वजूद रहेगा? लेकिन इन्हीं घड़ियों पर मुनहसर है, कीमती बना ले मेरे भाइयों। खैर आगे चलते हैं, वक्त कम में मैंने 2-3 मसले अर्ज करने हैं। उन मसलों की बुनियाद पर सबसे पहली बात तो यह है कि हमने आखिरत की तैयारी करनी है ताकि हम जहन्नम से बचकर कहां जाने वाले बन जाएं भाई? आहिस्ता बोलें जी। ये दुआओं के लिए पर्चियां मुझे बाद में दे दिया करें भाई, यहां मैं दुआएं करता हूं भाई मादरत के साथ। आपके लिए नहीं करूंगा, मैं किसके लिए करूंगा, लेकिन मादरत के साथ दिखा के नहीं करता हूं। साथी नाराज होते हैं कि जी हमारा नाम नहीं लिया। भाई नाम अगर लेना है ना तो मैं वहां खड़े होकर 10 बार नाम ले लेता हूं। तुम्हारी भी तबाही है, मेरी भी तबाही है। अल्लाह को दिखाना है या आपको दिखाना है? बोलो, ये क्या बात हुई कि जनाब नाम नहीं लिया तो लिहाजा नाराज हो गए। भाई नाम नहीं लेंगे आइंदा। सही है गलत है? अल्लाह तो जानते हैं ना किसको क्या जरूरत है। सही है, पर्चियां दे दिया करें, दुआएं होंगी इंशाअल्लाह। लेकिन पर्ची का वक्त जो है ना सलाम फिरने के फौरन बाद। अभी तवज्जो फरमाएं, नाराज तो नहीं हो गए? लेकिन आपके फायदे की मैं बात करूं, मैं आपके चेहरे देखकर आपको खुश करूं कि भाई फलां साहब खुश हो जाएं, फलां साहब खुश हो जाएं, फलां साहब खुश हो जाएं। भाई कभी भी खुश ना हो लेकिन अल्लाह खुश रहे। हाँ, अल्लाह खुश रहे। अल्लाह खुश रहेगा ना तो फिर मुझे किसी की नाराजगी की परवाह नहीं है। लेकिन आप मेरे भाई हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है। काम वो मुझसे करवाएं जिसका आपको फायदा हो, वो काम नहीं कराएं जिससे नुकसान हो हम सबको। आइए, तो अर्ज कर रहा था कि रमजानुल मुबारक में तो जनाब अली बोली लगती है बख्शिश की, बोली लग रही है बख्शिश की। यहां तो क्या है, थोक के हिसाब से, होलसेल के हिसाब से अल्लाह जन्नत में गुनाहगारों को बख्श बख्श के नहला धुला के भेज रहे हैं। लेकिन किस गुनाहगार को जो गुनाह पे अड़े नहीं, गुनाह से जान छुड़ाए और गुनाह की अल्लाह से माफी मांगे? क्या करे भाई? आज हमारा अलमिया यह है कि हमने बुराइयों को दीन बना लिया है, और जब हम बुराई के कामों को दीन बनाकर करेंगे अल्लाह राजी होंगे नाराज होंगे? फिर भी हम आस लगाए बैठे हैं कि हम जन्नत वाले हो जाएं, और गुनाह के काम को हमने समझ लिया है दीन। इसकी मैं मिसाल देता हूं। ये आज का जुमा बड़ी पोस्टें मैसेजेस चलते हैं, दोस्तों के फोन आते रहते हैं कि जी क़ज़ाए उम्री का तरीका बता दें। वो जो 4 रकात नमाज नफिल क़ज़ाए उम्री पढ़ी जाती है, फिर क्या होता है भाई कि जी उसके अंदर 4 रकतों में फलां 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 सूरतें पढ़ें। ये जुम्मतुल वदा में जो आखिरी जुमा है रमजान का, फिर क्या है जी, अगर 700 साल की नमाजें भी कज़ा हुई तो माफ। बल्ले 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 बल्ले, ये तो पूरा साल मस्जिदें बंद नहीं कर देनी चाहिए? क्या जरूरत है? दुकान बंद करते हो, 5 वक्त मस्जिद में आते हो, नींद कुर्बान कर लेते हो, ये आधी आधी रात तक मुसल्ले पे। जरूरत क्या है भाई? साल बाद 4 रकात नफिल पढ़ें और वारे न्यारे हो जाएं। सौदा सस्ता है महंगा है? तो सस्ते की तरफ आ जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, ये इस्लाम की तालीमात हैं कि नमाजें जो अल्लाह ने फर्ज की हैं वो फर्ज हैं, उनका कोई मुतबादिल नहीं है। अगर किसी की नमाज कज़ा हो चुकी तो अल्लाह उसको तौफीक दे, जिंदगी में उसको कज़ा पढ़ना लाजिम है। एक एक करके नमाज कज़ा पढ़ना लाजिम है। हजारों नमाजें जिम्मा है तो हजारों पढ़ना लाजिम है। कभी यह भी हो सकता है कि हजारों फर्ज कज़ा हुए हों, 4 नवाफिल से काम चल जाए, वो भी नवाफिल,
4 साल बाद एक मरतबा। ऐसा कोई नहीं है भाई, ऐसी ना कोई हदीस है, ना कोई शरीयत का मसला है, और ना ही ये क़ज़ाए उम्री का तरीका है। क़ज़ाए उम्री क्या है? जितनी नमाजें रह चुकी रोज़ाना की बुनियाद पर, नवाफिल बड़े नहीं पढ़ें उन्हीं को क़ज़ा नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। नवाफिल नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर क़ज़ा नमाजें जिम्मा रह गई तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक तो क़ज़ा नमाजें पढ़नी पड़ेंगी हमें, ये 4 रकात नमाज नफिल जो क़ज़ाए उम्री वाला एक तरीका राइज है, बोलो सारे इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक? बोले सारे, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है, ये दीन का चेहरा मसख करने की साजिश है। ये अल्लाह के हुक्मों की नाकदरी सिखाई जा रही है मेरे भाई। एक तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नमाजों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, और अगर जिम्मा है तो उन सबको पढ़ना है मेरे भाई, पढ़े बिना कोई चारे कार नहीं है। दूसरा मसला, ईद आने वाली है इंशाअल्लाह, हाँ जी, और ईद पे क्या होता है? ईद गम का दिन है, खुशी का दिन है? मुसलमानों के लिए ईद क्या है भाई? खुशी का दिन है। लेकिन हमने ईद को ताज़ियत का दिन बना दिया, सोग का दिन बना दिया, और फिर इसको हम सवाब भी समझते हैं, हक भी समझते हैं। उस खुशी के दिन को जिसको अल्लाह ने अपनी मेज़बानी का दिन बनाया, हमने उसको आंसुओं के सुपुर्द किया, गमों के सुपुर्द किया, ताज़ियत और सोग बना दिया। अल्लाह राजी होंगे नाराज होंगे? नाराज होंगे। हमारी खुशी हो, कोई आके खुशी में भांग डाल दे, बर्दाश्त होगा भाई? ये खुशी का दिन है अल्लाह की जानिब से ईद। क्या करते हैं, किसी मोहल्ले में इंतकाल हो जाता है, साल में कहीं इंतकाल हो गया, 6 महीने 4 महीने 10 महीने पहले इंतकाल हुआ है, रिश्तेदारों में दोस्तों में इंतकाल हुआ, अब हम सारे जनाब औरतें मर्द ईद वाले दिन उनके घर जा रहे हैं। क्यों जी? फलां की पहली ईद है, फलां की पहली ईद है। भाई वो जहां चला गया, अगर जन्नत में चला गया, उसकी रोजाना ही ईद है, और खुदा ना खास्ता अगर बेचारा कहीं अटक गया तो फिर कभी उसको ईद नसीब नहीं होगी। पहली ईद है, वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो मैयत के वरासा हैं, जिनके यहाँ 6-8 महीने या साल पहले मैयत हो चुकी थी, वो नया कपड़ा पहनना ऐब समझते हैं, ईद मुबारक कहना ऐब समझते हैं, और फिर इस दिन को सोग का दिन बना लेते हैं। और फिर हम भी जाकर उनके जख्मों को ताज़ा करते हैं, उनके दुखों को दोबारा जाके छेड़ते हैं, जगाते हैं। मेरे भाइयों, याद रखना, सख्त गुनाह का मामला है, सख्त गुनाह का मामला है, ये मामूली गुनाह नहीं है। इसलिए कि इस्लाम में सोग सिर्फ 3 दिन है, चौथे दिन सोग की इजाजत नहीं है। इंतकाल हुआ, सिर्फ 3 दिन का सोग है, चौथे दिन सोग करना शरीयत ने मना किया है। और हम तो जनाब 6-8 महीने 10 महीने या साल बाद जाकर दोबारा से वही इंतकाल का समाप बना लेते हैं, वही माहौल बन जाता है, वही रोना धोना होता है, और उन बेचारों के गम ताज़ा। अब उनकी ईद को हमने मातम का रंग दे दिया है। ईमान से बताएं, गुनाह नहीं होगा क्या हमें? अच्छा, थोड़ी देर वहां बैठकर उनको रुला धुला के हम वापस आ गए, नए कपड़े भी पहन रखे हैं, हलवे मांडे सब कुछ चलेंगे, मिठाइयां चलेंगी, दोस्तों के साथ जनाब हल्ला गुल्ला होगी, लेकिन उनको हम रोता छोड़ के आ गए। सारा दिन वो रोते रहेंगे अपने मरहूम को याद कर करके। याद रखना मेरे भाई, आज हमने इंशाअल्लाह ताला अपने आप को जहन्नम की आग से आजाद कराना है, नहीं कराना है? सबने कराना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह राजी होंगे तो मैं दावे से कहता हूं, मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह हम सबको जहन्नम से नजात नसीब फरमाएगा। और इस तरह अल्लाह से वादा करें इंशाअल्लाह, कोई रिश्तेदार नाराज हो या राजी हो, इंशाअल्लाह ईद वाले दिन इस रस्म में हम शरीक नहीं होंगे। तहिया करें अल्लाह से। मेरे भाई, मैं आपने आपसे शुरू नहीं करूंगा तो कौन बुराई का खात्मा करे? आप नहीं शुरू करेंगे तो कौन? हमारी सोच है कि पड़ोसी कर ले, कोई और कर ले, अभी मैं नहीं करता हूं, तो भाई इस तरह तो बुराई खत्म नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बुराई है मेरे भाइयों। इस चीज को अपनी जिंदगी से हम इंशाअल्लाह निकालेंगे इंशाअल्लाह। घरों में जाकर घरों की मस्तूरात को मसला समझाएं कि देखें ये शरन जायज नहीं है, ये गुनाह का मामला है, ईद का खुशी का दिन है, ये मातम और सोग का दिन नहीं है। आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बेटियां, पता चला कि हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का दमिश्क में, मुल्क शाम में इंतकाल हो गया है। खबर इनको पहुंची तो बहरहाल 3 दिन चूंकि सोग के थे तो ये अफसोस में बैठ गई, ताज़ियत के लिए इनके पास ख़वातीन आने लगी। जब 3 दिन मुकम्मल हुए,
चौथा दिन यानी शाम हुई, शुरू हुआ तो इन्होंने ज़ाफ़रान खुशबू मंगवाई। ज़ाफ़रान एक रंगदार खुशबू होती थी जो ख़वातीन इस्तेमाल करती थीं। वो खुशबू अपने हाथों पे लगाकर अपने रुखसार पे थोड़ी सी लगा दी। औरतें देख रही हैं, बाज़ ने तो उंगलियां उठाई कि ये क्या कर रही हो उम्मुल मोमिनीन। फरमाया तुम जानती हो कि मुझे खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बनाओ सिंगार की मुझे हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इस वक़्त, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और मेरे आका का दीन यही है कि 3 दिन के बाद किसी को भी सोग करने की इजाज़त, माँ सिवाय बीवी के अपने शोहर पे 4 महीने 10 दिन तक वो सोग करे, लेकिन वो भी 10-10 महीनों तक सोग नहीं करेगी। समझ आ गई है। फरमाया मैंने खुशबू लगाकर ये इजहार किया है कि मेरे अब्बा का मुझे दुख तो था, सोग भी किया 3 दिन, लेकिन अब अल्लाह के नबी का दीन मुझे बाबा के सोग से ज्यादा अजीज है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करके ये खुशबू लगाकर सोग का खातिमा कर दिया है। तो क्या ख्याल है मेरे भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करने के लिए हम सब कदम उठाएं? सारे नहीं बोल रहे भाई। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको बरकतें अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह हम प्यार मोहब्बत से ये मसला समझाएं, शिद्दत नहीं, प्यार मोहब्बत से। बेचारे लोगों को नहीं पता, मुआशरे में नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है, जाकर प्यार मोहब्बत से बताएं। इंशाअल्लाह जहन बनते चले जाएंगे, हम सब की आखिरत बनती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व